Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students, viewers and spectators. Welcome to Professor Ghulam Hussain Bhatti Chemistry channel. Today I am going to deliver the last topic of chapter number 9 of aromatic hydrocarbons, that is benzene. My dear students, orientation in electrophilic substitution reaction of benzene is our topic today. Now, my dear student, when this is benzene, when one substituent, say X is a substituent, if we attack it on benzene, then what is produced? Monosubstituted product of benzene is produced. And when this monosubstituted benzene is further reacted with another substituent, if second substituent is attached on monosubstituted benzene, then ortho, meta and para products are produced. Out of 5 positions in benzene, 1, 2, 3, 4, 5, this is monosubstituted benzene. Out of its 5 positions, 2 positions जो है ये आर्थो पोजीशन थे, ये वाली और ये वाली, और 2 positions, 1 and second one is this, ये मेटा पोजीशन है, and only 1 position जो है वो पैरा पोजीशन है. Out of 5 positions in benzene, 2 positions are of ortho and 2 positions are of meta and 1 position is of para. Divide 100 by 5. So the chance of attack on ortho position is 40%, while the chance of attack on meta position is on meta position 40%, and the chance of attack on para position is only 20%. My dear students, now take the example. We will go into the detail. This is nitrobenzene. Nitrobenzene जो है, इसकी जब क्लोरीनेशन करेंगे, when we add chlorine molecule in nitrobenzene in the presence of ferric chloride as a catalyst, then what will happen? This chloro group will go into meta position, and in this way meta chloro nitrobenzene will be produced. और यहाँ से जो है ये हाइड्रोजन एक निकलेगा, इस हाइड्रोजन के साथ मिलकर जो है Cl प्रोड्यूस कर देगा. नाउ ये आपकी जो है वो एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन. कन्वर्ट बेंजीन इनटू मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन. माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल you will have to prepare nitrobenzene, then nitrobenzene को कन्वर्ट करेंगे मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन में. तो सबसे पहले बेंजीन का रिएक्शन बेंजीन की नाइट्रेशन करेंगे. बेंजीन का रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ? नाइट्रिक एसिड के साथ. when nitric acid is reacted with benzene, this NO2 group will be attached on benzene. This is nitrobenzene. So this nitrobenzene is further इसकी क्लोरीनेशन करेंगे in the presence of ferric chloride as a catalyst. Then what will be produced? Meta chloro nitrobenzene. तो ये डबल स्टेप, 1 step and 2 step reaction है. This is all about this short question. Now my dear students, let us take another example. This is chlorobenzene. When we add nitric acid, यानी इसकी क्लोरोबेंजीन की नाइट्रेशन करवा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एज अ कैटालिस्ट, तो उस वक्त क्या होगा? यानी यहाँ बात एक बड़ी अहम समझने वाली है. यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, और क्लोरीन आया. क्लोरीन ने कौन सी पोजीशन पर अटैच हुआ? मेटा पोजीशन पर. अब यहाँ पर जो है क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है किस पर? बेंजीन पर. अब इसकी नाइट्रेशन करवाने लगे हैं. नाइट्रिक एसिड ऐड किया. नाइट्रिक एसिड का जो नाइट्रो ग्रुप है वो कौन सी पोजीशन पर लगेगा? वो आर्थो पोजीशन पर लगेगा
और पैरा पोजीशन पर लगेगा, नाइट्रो पर नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? आपको इसका जवाब आगे मैं देता हूं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट माय डियर स्टूडेंट्स कि ये वाला नाइट्रो ग्रुप मेटा पोजीशन पर क्यों नहीं लगता। इसकी वजह है, देयर इज अ रीजन बिहाइंड, क्यों नहीं अटैक होगा। और जबकि ये क्लोरो ग्रुप जो है क्यों नहीं आर्थो पोजीशन पर लगा और क्यों पैरा पोजीशन पर नहीं लगा, इसके पीछे भी एक रीजन है। आई विल एक्सप्लेन इट वन बाय वन माय डियर स्टूडेंट्स। देन दिस इज ऑर्थोक्लोरो नाइट्रोबेंजीन and this is para-chloro nitrobenzene and 2 molecules of water will be produced। और इस इक्वेशन को बैलेंस के लिए यहाँ भी 2 लगाएंगे और यहाँ भी 2 लगाएंगे। My dear students, there is a question in the exercise of your book which is that convert benzene into para-chloro nitrobenzene। तो इसका आंसर क्या है? सबसे पहले आप बेंजीन से स्टार्ट करें, बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बनाएंगे, क्लोरोबेंजीन से फिर पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन प्रोड्यूस हो जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू विल हैव टू डू, बेंजीन की क्लोरीनेशन करेंगे। व्हेन बेंजीन इज रिएक्टेड विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ फेरिक क्लोराइड एज अ कैटलिस्ट, देन क्लोरोबेंजीन विल बी प्रोड्यूस्ड। और क्लोरोबेंजीन के बाद जो है इस क्लोरोबेंजीन की फिर नाइट्रेशन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, देन व्हाट विल बी प्रोड्यूस्ड? पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। माय डियर स्टूडेंट्स, इट मीन्स दैट sometime we get meta product and sometime we will get ortho product and para product। My dear students, हमने ये पढ़ा था कि आर्थो एंड मेटा पोजीशन पर अटैक, आर्थो और मेटा पोजीशन पर अटैक कितना होता है? 40%, जबकि पैरा पोजीशन पर ओनली 20% होता है। इट इज़ टोटली फॉल्स, क्योंकि या तो सिर्फ मेटा पोजीशन पर अटैक हो रहा है, देखो, या सिर्फ मेटा पोजीशन पर अटैक हो रहा है और या आर्थो और पैरा दोनों पोजीशन पर अटैक हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि बेंजीन पर जो फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट लगा होता है, यानी बेंजीन पर ये देखें, ये फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट NO2 लगा हुआ है, ये डिसाइड करेगा कि आने वाला सेकंड सब्स्टिट्यूएंट आर्थो पोजीशन पर अटैक करेगा, मेटा पर अटैच होगा या पैरा पर अटैच होगा। यानी जो बेंजीन के ऊपर फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है वो डिसाइड करेगा। जैसे देखें नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ था तो इनकमिंग सब्स्टिट्यूएंट मेटा पोजीशन पर लगा, लेकिन जब क्लोरो ग्रुप लगा हुआ था तो इनकमिंग सब्स्टिट्यूएंट आर्थो एंड पैरा पोजीशन पर उसने अटैक किया। तो इसका मतलब क्या है कि आने वाला जो सब्स्टिट्यूएंट है, ये जो फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट है वो आने वाले सब्स्टिट्यूएंट को डायरेक्शन देता है कि तुमने कौन सी पोजीशन पर अटैच होना है। माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ अब इन्हीं को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि इसके पीछे क्या रीजन है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। माय डियर स्टूडेंट्स, व्हेन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इज अटैच्ड on benzene, then incoming substituent will attach on ortho and para position। इसमें वो ये कहता है कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला ग्रुप, ऐसा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके किसको? बेंजीन को, वो बेंजीन के ऊपर अटैच हो तो इनकमिंग सब्स्टिट्यूएंट सिर्फ पैरा और आर्थो पोजीशन पर अटैच हो सकता है। दीज ग्रुप्स डोनेट इलेक्ट्रॉन टू बेंजीन। अब ये जो आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होती हैं, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं बेंजीन को। दे इंक्रीजेस द अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन बेंजीन, ओके, एंड देयरफॉर
reactivity of benzene increases, when reactivity of benzene increases, then ortho and meta products will be produced. My dear students, ऐसे ग्रुप्स जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की एबिलिटी रखते हों, बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हों, तो बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। यानी अगर बेंजीन पर ऐसे ग्रुप लगे हों जो इलेक्ट्रॉन बेंजीन को डोनेट कर दें, तो बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी? इंक्रीज करेगी। तो फिर बेंजीन की रिएक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाएगी। इलेक्ट्रोफाइल आपको पता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। अगर बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाए तो वो क्या बन जाता है? तो वो न्यूक्लियोफाइल बन जाता है और इलेक्ट्रोफाइल इस पर आसानी से क्या करेगा? अटैक करेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल का न्यूक्लियोफाइल पर अटैक क्या हो जाता है? ईजी हो जाता है। माय डियर स्टूडेंट्स, तो वो ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो और नेगेटिव चार्ज रखते हों, वो बेंजीन के इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी को इंक्रीज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से बेंजीन की रिएक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है। देन टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड, दैट इज़ आर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट्स। आर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट पर अटैक क्यों होता है, इसके लिए हम बीएससी का टॉपिक जो है रेजोनेंस स्टडी करेंगे, और इसमें हम ये स्टडी करेंगे कि कब आर्थो एंड पैरा पर अटैक होगा और कब मेटा पोजीशन पर अटैक होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, ये रेजोनेंस बीएससी का टॉपिक है। इसके मुताबिक ये देखें, ये बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप लगा हुआ है। अब ऑक्सीजन के पास 2 लॉन पेयर्स हैं। ऑक्सीजन अपने लॉन पेयर जो है आगे जो है इस बॉन्ड को देगा, और आगे जो है जब यहाँ पर लॉन पेयर आएगा तो ये बॉन्ड जो है यहाँ से आगे शिफ्ट हो जाएगा अगली कार्बन के ऊपर, एंड इन दिस वे इसके ऊपर जो है लॉन पेयर कम हुए, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर, और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ सिंगल था, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाएगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट आ गया, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन आगे दे दिया। अब इन दिस वे माय डियर स्टूडेंट, ये बॉन्ड भी ब्रेक हो गया और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज आ गया। अब इसके बाद ये जो नेगेटिव चार्ज है ये अगले कार्बन की तरफ शिफ्ट होगा, और ये जो है डबल बॉन्ड है ये नेक्स्ट कार्बन की तरफ जब शिफ्ट होगा, अब ये वाली जो पोजीशन बनी है, दिस पोजीशन इज कॉल्ड आर्थो पोजीशन। अब देखें ये सब्स्टिट्यूशन लगा हुआ है, पहला डायरेक्टिंग ग्रुप जो है नेगेटिव चार्ज जो है कहाँ पर आया? आर्थो पोजीशन पर आया। अब अगर नेक्स्ट देखें तो ये रेजोनेंस के अंदर जो है बेसिकली नेगेटिव चार्ज रेजोनेट करेगा या डीलोकलाइज करेगा नेक्स्ट कार्बन एटम्स पर। अब डबल बॉन्ड जो है, अब ये देखें, ये नेगेटिव चार्ज आगे अगली कार्बन पर और ये डबल बॉन्ड अगली कार्बन पर शिफ्ट जब करेगा तो ये वाला ये नेगेटिव चार्ज जो है यहाँ पर जो है दोबारा डबल बॉन्ड बन जाएगा इस पोजीशन पर, और अगली पोजीशन पर जो है नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और ये कौन सी पोजीशन है? अब ये वाली आर्थो थी, मेटा पोजीशन पर अटैच नहीं हुआ नेगेटिव चार्ज। ये कौन सी पोजीशन पर अटैच हुआ है? पैरा पर। अब इसके बाद अब आगे देखिए, ये नेगेटिव चार्ज जो है फर्दर जो है अगली कार्बन की तरफ रेजोनेट करेगा, और ये डबल बॉन्ड नेक्स्ट कार्बन की तरफ जब रेजोनेट करेगा तो यहाँ पर जो है जब नेगेटिव चार्ज आगे शिफ्ट करेगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा और नेगेटिव चार्ज यहाँ चला जाएगा। और ये भी कौन सी पोजीशन है? ये भी आर्थो थी, और ये भी कौन सी पोजीशन है? आर्थो पोजीशन। अब इसमें देखें, आर्थो एंड पैरा पोजीशन प्रोड्यूस हुई। अब नेक्स्ट में क्या होगा? ये जो इलेक्ट्रॉन है आगे जो है इसको देगा, किसको? यहाँ पर जो है डबल बॉन्ड बन देगा, और इसके बाद जो है ये जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक होगा, और ये जो है लॉन पेयर वापस ऑक्सीजन को दे देगा, और ऑक्सीजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज था वो खत्म हो जाएगा, एंड इन दिस वे ये बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप जिसके पास 2 लॉन पेयर हैं दोबारा प्रोड्यूस हो जाएंगे। अब इसके अंदर क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हुई, रेजोनेंस हुई। इसमें देखें, नेगेटिव चार्ज के अंदर रेजोनेंस क्रिएट हुई, रेजोनेट करके आगे ट्रांसफर होता जा रहा है। माय डियर स्टूडेंट्स, जब भी कोई ग्रुप बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो वो ग्रुप
आर्थो एंड पैरा पोजीशन को इलेक्ट्रॉन रिच कर देता है, यानी आर्थो एंड पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन जो है वो रिच हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं। ये देखिए आर्थो और ये पैरा, आर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं। सो आर्थो एंड पैरा पोजीशंस आर इलेक्ट्रॉन रिच। तो फिर नया आने वाला सब्स्टिट्यूएंट उस जगह अटैक करेगा। अब माय डियर स्टूडेंट्स, अब आपको मैंने यहाँ बताया था कि क्यों आर्थो एंड पैरा पर अटैक करेगा। जब ये कंडीशन होगी कि नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, कौन सी पोजीशन पर है? सिर्फ आर्थो एंड पैरा पर, मेटा पर नेगेटिव चार्ज नहीं आया। तो इसका मतलब क्या है? जब भी न्यू सब्स्टिट्यूएंट अटैक करेगा तो वो कौन सी पोजीशन पर अटैक करेगा? वो सिर्फ आर्थो एंड पैरा पोजीशन पर अटैच होगा, वो मेटा पोजीशन पर नहीं लगेगा। तो फिर नया आने वाला सब्स्टिट्यूएंट उस जगह अटैक करेगा जहां पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा, यानी बेंजीन की रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ टेक एन एग्जांपल। दिस इज टॉलोइन, बेंजीन के साथ CH3 लगा हुआ है। व्हेन नाइट्रिक एसिड इज, इसकी नाइट्रेशन करें इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एट 30 to 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, देन व्हाट विल हैपन? ये जो बेंजीन के ऊपर कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, टॉलोइन लगी हुई है। तो ये जो नाइट्रो ग्रुप है ये आर्थो पोजीशन पर अटैच होगा या पैरा पोजीशन पर अटैच होगा। दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक में नाइट्रो ग्रुप आर्थो पोजीशन पर अटैच होगा, इट्स नेम इज आर्थो नाइट्रो टॉलोइन, और सेकंड वाले को कहेंगे पैरा नाइट्रो टॉलोइन एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर विल बी प्रोड्यूस्ड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाली आर्थो पोजीशन एंड पैरा पोजीशन जो है ये इलेक्ट्रॉन रिच है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, इसलिए आने वाला जो सब्स्टिट्यूएंट है वो इन्हीं पोजीशन पर अटैच होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ टेक अनदर एग्जांपल। अब इसमें देखें, इसमें हमने क्या किया? नाइट्रिक एसिड की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दिया, 4 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रिक एसिड ऐड किए इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, और अब क्या किया? टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया फ्रॉम 30 to 40, 60 to 70 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर करेंगे, देन वी विल गेट 2 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स। नंबर 1, अब इसमें देखें, ये जो इसमें क्या हुआ? NO2 ग्रुप और आर्थो और पैरा दोनों पर अटैच होंगे। ये टॉलोइन के आर्थो और पैरा पोजीशन दोनों पर नाइट्रो ग्रुप जब अटैच होंगे तो इसका नाम होगा 1, 2 पोजीशन पर नाइट्रो है और 4 पोजीशन पर नाइट्रो है, 2,4 डाई नाइट्रो टॉलोइन। अब इसकी नंबरिंग कर लें, कौन कौन सी पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है? 2 पर एंड 4 पर। और सेकंड प्रोडक्ट जो बनेगा वो देखें, उसमें ये भी आर्थो, एक अटैच यहाँ होगा नाइट्रो ग्रुप और दूसरा अटैच यहाँ होगा, इसका मतलब है दोनों आर्थो पोजीशन पर अटैच हो रहा है। तो इसका मतलब है इसका नाम क्या होगा? फिर नंबरिंग दें, ये एक सेकंड पोजीशन पर अटैच है, एक 6 पर अटैच है नाइट्रो ग्रुप, तो इसका नाम होगा 2,6 डाई नाइट्रो टॉलोइन एंड 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर विल बी प्रोड्यूस्ड। तो इसका मतलब क्या हुआ? इफ वी इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड आल्सो इंक्रीज द टेम्परेचर, देन रिएक्टिविटी इंक्रीजेस एंड वी विल गेट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। क्यों नाइट्रो ग्रुप जो है आर्थो में भी अटैच हो रहा है और पैरा पर भी अटैच हो रहा है, या सिर्फ आर्थो पोजीशन पर अटैच हो रहा है? स्टूडेंट्स, इफ वी टेक 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड इंक्रीज द टेम्परेचर फ्रॉम 60 to 70 to 100 डिग्री सेल्सियस, देन व्हाट विल हैपन? अब हमारे पास क्या हुआ? एक नाइट्रो ग्रुप आर्थो पर लग देगा, एक नाइट्रो ग्रुप पैरा पोजीशन पर लग देगा और तीसरा नाइट्रो ग्रुप फिर आर्थो पोजीशन पर लग जाएगा। तो इसका नाम क्या होगा? ये देखें, ये 1 नंबरिंग दे रहे हैं, एक 2 पर है, एक 4 पर और एक 6 पर, 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो टॉलोइन, इसको TNT भी कहते हैं। इट इज एन एक्सप्लोसिव मटेरियल जो है
तो ये माय डियर स्टूडेंट्स अक्सर आता है, शॉर्ट क्वेश्चन आता है, कन्वर्ट टॉलोइन इनटू TNT। इट इज़ इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। माय डियर स्टूडेंट्स, हमने जितने भी रिएक्शन पढ़े हैं इनमें अटैक आर्थो एंड पैरा पोजीशन पर हो रहा है। ये देखें, ये जितने भी रिएक्शन पढ़े हैं तीनों के तीनों, इनमें अटैक सिर्फ आर्थो एंड पैरा पोजीशन पर हो रहा है। इसकी वजह क्या है? रीजन रेजोनेंस ने हमको बताई है। रेजोनेंस क्या बताता है? जिस पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज होगा उस पोजीशन पर जो है वो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन रिच होगा। जिस पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन रिच पोजीशन जो है आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप से। हमने जितने भी रिएक्शन पढ़े हैं इनमें अटैक आर्थो एंड पैरा पोजीशन पर हो रहा है। इसकी वजह क्या है? रेजोनेंस ने हमको बताया कि इलेक्ट्रॉन रिच पोजीशन आर्थो एंड पैरा पोजीशंस हैं, इसलिए सब्स्टिट्यूएंट जो न्यू सब्स्टिट्यूएंट है वो आर्थो एंड पैरा पोजीशन पर अटैच होगा, वो मेटा पर अटैच नहीं होगा, क्योंकि मेटा पोजीशन जो है ये रेजोनेंस के प्रिंसिपल के मुताबिक मेटा पोजीशन जो है, ये वाली मेटा पोजीशन जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच नहीं है। Dear students, now I am going to discuss the examples of ortho and para directing groups. Ortho and para directing groups are electron rich. Their examples are: number 1 NCH3 twice, number 2 amino group Ni2, number 3 OH group, number 4 OCH3 alkoxy group, number 5 alkyl group, number 6 fluoro group, number 7 chloro group, ब्रोमो ग्रुप एंड आइडो ग्रुप। माय डियर स्टूडेंट्स, इन सब के अंदर आपने एक चीज कॉमन देखी, दे हैव इधर लॉन पेयर, और इनके ऊपर लॉन पेयर है, या इनके ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, या इनके पास अल्काइल ग्रुप है जैसे CH3 ग्रुप है। तो इन सब के अंदर ये चीज एक कॉमन है, दे हैव इधर लॉन पेयर, नेगेटिव चार्ज एंड अल्काइल ग्रुप। Students, now the last one is meta directing group. What are meta directing groups? ऐसे ग्रुप्स जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पोजीशन पर अटैच करवाते हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स कहलाते हैं। अब इसकी सबसे पहले समझाने के लिए सबसे पहले कि मेटा पोजीशन पर क्यों इनकमिंग, ये जो अगर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप लगा होगा तो वो न्यू आने वाले सब्स्टिट्यूएंट को मेटा पोजीशन पर अटैच क्यों करवाएगा, इसकी क्या वजह है? BSc का आर्टिकल रेजोनेंस हमको ये बताता है। सबसे पहले इसको पढ़ेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज बेंजीन और इसके ऊपर नाइट्रो ग्रुप अटैच किया गया है। अब ये जो है इट इज विदड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन, ये जो है ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करेगा किससे? बेंजीन से। दिस नाइट्रो ग्रुप विल विदड्रॉ द इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन खींचेगा किससे? फ्रॉम बेंजीन। अब ये देखें, ये जो इसके ऊपर जो है N डबल बॉन्ड O और N सिंगल बॉन्ड, इसके ऊपर O ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। जब ये इलेक्ट्रॉन जो है विड्रॉ करेगा बेंजीन से ये नाइट्रो ग्रुप, तो क्या होगा? यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये वाला जो है डबल बॉन्ड आगे शिफ्ट हो जाएगा और इस ऑक्सीजन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और यहाँ चूंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लिए किसने? नाइट्रो ग्रुप ने, तो इस पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो इस पोजीशन पर क्या हुआ? पॉजिटिव चार्ज आ गया। नाउ नेक्स्ट पोजीशन पर क्या होगा? ये जो हमारे पास डबल बॉन्ड है ये आगे शिफ्ट कर देगा, ये यहाँ से यहाँ डबल बॉन्ड जब शिफ्ट करेगा तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद और ऊपर वाला केस वही रहेगा। अब ये वाला डबल बॉन्ड जो है यहाँ पर इस पोजीशन पर शिफ्ट करेगा तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस पोजीशन पर चला जाएगा और उसके बाद आगे क्या होगा? ये जो ऑक्सीजन जो है वापस अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ सेंड करेगी और ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर ख़त्म हो जाएगा और ये जो है
ये डबल बॉन्ड जो है दोबारा यहाँ जब शिफ्ट होगा, यानी बेंजीन वापस अपना इलेक्ट्रॉन जो है वापस ले लेगी, तो उसके बाद यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएंगे और 3 डबल बॉन्ड आ जाएंगे और ऊपर नाइट्रो ग्रुप अटैच हो जाएगा। जो ये पहले वाली प्रोडक्ट थी बेंजीन के ऊपर नाइट्रो ग्रुप अटैच है, आखिर में देखें बेंजीन के ऊपर दोबारा नाइट्रो ग्रुप अटैच हो गया है यहाँ पर। अब यहाँ से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप जो है वो मेटा पोजीशन पर अटैच क्यों होगा, वो आर्थो और पैरा पोजीशन पर क्यों अटैच नहीं होता। अब इसकी क्या वजह है, इसका रेजोनेंस वाले मेथड ने हमें बताया। डियर स्टूडेंट्स, NO2 ग्रुप कंटेन डबल बॉन्ड एंड हैज अनसैचुरेशन। माय डियर स्टूडेंट्स, अनसैचुरेटेड ग्रुप्स ने बेंजीन से इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करवा दिया, तो आर्थो और पैरा पोजीशन, ये देखें ये कौन सी पोजीशन है आर्थो, ये कौन सी पोजीशन है पैरा, ये कौन सी पोजीशन है आर्थो पोजीशन। तो आर्थो और पैरा पोजीशन जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो है वो बन जाती हैं। अब ये पोजीशन क्या हुई, इन पोजीशन पर आर्थो पैरा और आर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और इसका मतलब क्या हुआ, बेंजीन भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन गई। तो इलेक्ट्रोफाइल, जब इलेक्ट्रोफाइल पर आपको पता है कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। जब इलेक्ट्रोफाइल पर जो पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसकी वजह से जब वो अटैच होगा आकर, तो वो इन पोजीशन पर जिन पर ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है वहाँ अटैच नहीं होता, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी आर्थो पोजीशन पर पैरा पोजीशन पर और आर्थो पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रोफाइल पर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ई पॉजिटिव जो है वो इन पोजीशन पर अटैच नहीं होगा। ई पॉजिटिव जो है इलेक्ट्रोफाइल जो है इन पोजीशंस पर अटैच नहीं होगा। तो जिसकी वजह से ये जो है कौन सी पोजीशन ऐसी है जहां पर पॉजिटिव चार्ज नहीं है, सिर्फ इसमें ये देखें एक ये पोजीशन और एक ये पोजीशन, ये देखें यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज नहीं है, यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सिर्फ मेटा पोजीशन बाकी बच जाती है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं है, जिसकी वजह से आने वाला सब्स्टिट्यूएंट मेटा पोजीशन पर अटैच होता है। तो इन ग्रुप्स को फिर हम क्या नाम देते हैं, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। माय डियर स्टूडेंट्स, बेंजीन की रिएक्टिविटी मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स के केस में डिक्रीज हो जाती है, जबकि आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स के केस में बेंजीन की रिएक्टिविटी मैंने आपको बताया इंक्रीज हो जाती है। ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं, यानी मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप जो होते हैं, ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। ये ग्रुप्स बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना देते हैं और बेंजीन की रिएक्टिविटी को रिड्यूस कर देते हैं, और सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनती है जिसको हम क्या कहते हैं, मेटा प्रोडक्ट। तो इस केस में सिर्फ एक प्रोडक्ट बनती है जिसको क्या नाम देते हैं, मेटा प्रोडक्ट। मेटा प्रोडक्ट ये मेटा पोजीशन पर अटैच होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, मेटा पोजीशन पर क्यों अटैक होता है, क्योंकि हमने रेजोनेंस में देखा कि मेटा पोजीशन वो वाहिद पोजीशन है जिस पर पॉजिटिव चार्ज नहीं है। ये किसने बताया हमको, रेजोनेंस ने। आपकी एफएससी की बुक में इसकी डिटेल नहीं है, इसके लिए मुझे बीएससी के आर्टिकल से हेल्प लेनी पड़ी ताकि आपको समझ आ जाए कि यहाँ पर जो है क्या हुआ। आर्थोमेटा पैरा पोजीशन के केस में रेजोनेंस की वजह से मैंने आपको समझाया, और इसी तरह यहाँ पर जो है मेटा पोजीशन में भी मैंने आपको कंसेप्ट क्लियर किया। माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज नाइट्रोबेंजीन। व्हेन जब इसकी नाइट्रेशन करेंगे, नाइट्रिक एसिड ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एट 95 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, देन व्हाट विल हैपन, NO2 ग्रुप जो है मेटा पोजीशन पर अटैच हो जाएगा। और ये देखें 1 2 3 पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप अटैच हुआ है, साथ वाटर बनेगा, तो इसका नाम क्या होगा, 1,3 डाई नाइट्रो बेंजीन। तो मीन्स so meta directing groups, they are electron withdrawing groups, and benzene become electron deficient, so reactivity of benzene is reduced. Only one product is produced called meta product. We have seen in resonance that ये जो resonance है,
that meta is the only position which does not contain positive charge. Meta groups are electron deficient and they contain unsaturation or contain positive charge. If electron withdrawing group is attached on the benzene, then incoming substituent will attach on meta position only. Now, the examples of meta directing groups are following: NCI3 thrice, nitro group, NO2, cyano group, ketonic group, carboxylic group and formyl group are the examples of meta directing groups. My dear students, now conclusion, ये जो हमने पढ़ा है इसको कंक्लूड करते हैं. My dear students, मेटा पोजीशन पर उस वक्त अटैक होगा जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा. तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है रिएक्टिविटी को, बेंजीन की रिएक्टिविटी को डिक्रीज कर देता है और जो सब्स्टिट्यूएंट होता है वो जाकर किस पर लगेगा, मेटा पोजीशन पर न्यू आने वाला सब्स्टिट्यूएंट लगेगा, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, उसके साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है. जबकि आर्थो और पैरा पोजीशन पर उस वक्त अटैक होगा जब उस पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा. ये देखें CH3 मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, या क्लोरो ग्रुप लगा हो, मिथाइल ग्रुप और क्लोरो ग्रुप की एग्जांपल दी. अब ये लगा हो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बेंजीन की रिएक्टिविटी को इंक्रीज करवाता है और सब्स्टिट्यूएंट को आर्थो और पैरा पोजीशन पर लगवा देता है. माय डियर स्टूडेंट्स, viewers and spectators, thank you very much for watching my video lecture. Please like, subscribe my channel for more videos. My dear students, I hope that आपके कंसेप्ट सारे क्लियर हो गए होंगे और आपको जो है समझ आ गई होगी. My dear students, अब आप जो है अगर आपको समझ आ गई है then you may share my video with your friends. Thank you very much for watching my video. Allah Hafiz.